So in the last lecture, we have learned this key, how to create the users inside the organizations. And like we created all these 4 users, the customer development manager testing, created all these four users in the last lecture. Since we were having, 3 platform licenses, so I created user customer, manager, and the testing. These are the 3 users, those who are having the platform licenses. So we have given them a custom standard platform file. And for this user, we were having a Salesforce license. So with the development user, I have given a Salesforce license to him. So he is presently having this aligned standard user profile. So this is how we created, this is how we actually learn how to create users inside the organization. Now, there is one question they ask in the interview. Rather, I mean, there are a few more questions regarding. Let me show that. Can we create users in the bulk? You know, can we create users in the bulk? And if it is yes, then what are the consequences? So see, if you remember, the last lecture we created, we actually have individually created one user at a time. So I was clicking on this particular new user button. Yes. So what I was doing is that, I was clicking on that new user button, then we were filling this form. And once we save it, so one user was created. And after that, we created the second, we created the third, and then we created the. So this is how, this is how individually actually we created one by one, this at a time. So now they ask you this in the interview. Okay, can we create bulk users? Can we create more than one users in a single snapshot? So the answer is yes. Yes, we can do that. There are 2 techniques for this. Now I'm giving you the answer, so you must write down it. Because right now I'm giving you the answer for this question. The question is, can we create multiple users? Can we create users in the bulk instead of creating one user, single user at a time? So can we create multiple users at a time? Can we create so many users at a time? So answer is yes, we can do that. So basically, there are 2 techniques to doing that. First is you can go with this add multiple users button. Okay. So now if you click on this, if you click on this, you see. First of all, I mean, as usual, we have the, if you are creating the user, you must have that license. Now, for example, I know that I am having, so many chatter-free licenses. If you wanted to see, let's go to the company profile once again, so that, now see, we are having this, yeah, chatter-free license is almost 5,000 license. Only one is consumed. So this 4,999 licenses we are having. So I can first of all I need to select the license. What kind of license you wanted to give to them? So if I'm giving this chatter free license, I'm selecting the license. See, now with this interface, how many users I can create? 10. See, up to the 10. So this form will allows me to create at least 10 users in a single, in a single instance. In a single instance, I can at least create 10 users. Now, for example, I need to create 100 users. I probably need to create 100 users. So if I go with this, if I go with this add multiple users button, so this allows me to create, this in a single time I can create 10 users. But if I wanted to create, for example, 100 users, so I should repeat this process 10 times. I should repeat this process 10 times. Okay. Now, if I wanted to create thousands users, because I can create up to 4,999 licenses that I'm having. See all the licenses, how many you are having, it's being listed out over here. So you, as an app subscription, you have, 2 licenses. For the chatter external, you have 500. For the chatter free, you have 4,999.
And see, every license has been listed out over here. So these many licenses you are having, so you can create that many. For example, I need to create, for example, 4,000, probably 4,000 chatter free users I want to. And if I go with this interface, if I go with this interface, so my maths is a little bit, I'm very bad in maths. So, for example, I need to create, 4,000 users. And if I go with this, in a single, with this page, I can create 10 users. That means 400 times I need to repeat the same process. You know, I need to repeat the same process for 400 times. Although I can create 10 users in the bulk, है ना? बट यस एक चीज यहाँ से ये भी समझ में आ रही है कि ठीक है एक एक यूजर नहीं क्रिएट करेंगे वी कैन एटलीस्ट क्रिएट 10 यूजर्स दैट इज समथिंग व्हिच इज ओके ठीक है चलो कुछ तो राहत मिलता है बट देन फॉर क्रिएटिंग मोर नंबर ऑफ द यूजर्स अगेन वी हमें एक चीज नजर आया कि दिस इज आल्सो नॉट सफिशिएंट दिस इज आल्सो नॉट अ गुड प्रोसेस दिस इज आल्सो नॉट अ गुड प्रोसेस वी मस्ट हैव समथिंग that we can create more than 10 users we must have something तो ठीक है पहला तरीका तो आपको मैंने बता दिया what is the question? The question is, can we create multiple users in a single, probably in a single time? So the answer is yes. There are two techniques to create bulk users. First is add multiple users button, and that is present on this all user page. You have, instead of pressing this new user button, this will open a form where you can create only one user. But if you go with this add multiple users, yes, you can create with this interface, you can create at least 10 users. That means 10 users in a single page. But again, this is we understand that this is not again sufficient. This is not fulfills every time. This not fulfill our need. So what is there in the Salesforce that beyond this, if I wanted to create thousands of the users, if I'm having that much of license, for example, I am having 4,999 licenses of chatter free, and I wanted to create 4,000 chatter users. So should I go with this? Obviously, the answer is no. Yes, this is not the right way. Why? Because this can I need to repeat this process for 400 times. Then only I would be able to create that many number of the users. So I don't have that much of time, obviously. And this is very time consuming. This is very, it's a very lengthy process. So obviously we cannot go with that. So if you have at least, if you want to create users within 10, you can go with this, you can go with this. There's one more drawback over here कि आपको जो license यहाँ पे select करेंगे, if you select chatter free, you can only go with, you can only go with same license. But if I want, for 500, I want some other license for 500 else other, for five, not 500, for first five, I want chatter free for the next five, I want something else. I cannot go with that. फिर मेरे को वापस 5 यहाँ से एंट्री करना पड़ेगा, 5 दूसरा लाइसेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा. So yes, this is one of the another drawback. ये भी आपको समझना पड़ेगा. ठीक है लेकिन चलो वो भी बात नहीं करते हैं अगर एक ही लाइसेंस है अपने पास चैटर फ्री यूजर की और हमको वही यूजर करना है तो 10 के अंदर है या 10 तक है so go with this. Go with this. Second technique I'm now telling you. Second technique क्या है? Data loaders. Now with the help of data loaders, see creating the user is something like, uh, creating a user is something like creating the record inside user object. ये हमने डिस्कस किया था. Let me show you that एक चीज एकदम जल्दी नजर ही नहीं आ रहा. So मैंने आपको बताया था एक चीज जब ये हम डिस्कशन में लाए थे इस डायग्राम को तो आई टोल्ड यू वन थिंग ऑल ऑफ द यूजर रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इनसाइड वन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज यूजर ऑब्जेक्ट नाउ क्रिएटिंग अ यूजर मींस क्रिएटिंग अ न्यू रिकॉर्ड इनसाइड द यूजर ऑब्जेक्ट अगर मैं आपसे कहूं कि क्रिएटिंग एन अकाउंट मींस व्हाट गोइंग टू अकाउंट ऑब्जेक्ट एंड क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड इनसाइड द अकाउंट दिस मींस कि यू क्रिएटेड वन अकाउंट if I am asking you to create one position record how you are going to do that you will go to the position object you create a record inside the position object that means you created a position. If I ask you to create a contact, how you are going to do that? You first go to the contact object, then you create a record over there. So this means you created a contact. That is what. So creating a user means what? Creating a user means inserting a new record inside the user object. So if you insert, a new record inside the user object, that means you created a user. That means you created a user. Okay. So if you create a new user,
record inside the user object. This means you created one user inside the, you created one user. That is what. So if I wanted to create users in bulk, more than 10, I should go up with this technique called as data loader. Now with the data loader, you have something called as insert. We are going to have a session on this, don't worry. देखते हैं कब, लेकिन yes, definitely we are going to have a session on this data loader. Data management के ऊपर I'm going to take a session where I'm going to tell you how to use, first of all, how to install the data loader, and then what are the prerequisites for this. Whenever you wanted to install this, this is actually this is the only on-premise tool inside the Salesforce. Apart from this tool, nothing is there what you need to install. अभी आपने देख लिया कि आज तक जितना भी काम किया हमने सारा काम URL पे किया. But yes, the data loader is the only tool that we need to install. So far, this is the only on-premises tool what is being given to the Salesforce. तो Salesforce ने जो हमको दिया है बस ये इकलौता on-premise tool है, बाकी कुछ नहीं. तो you need to go with this insert. आप insert आप कैसे login करते हैं, क्या करते हैं, I'm going to tell you everything. So if you insert, with the help of this data loader की capacity है 5 million. 1 million is 10 lakh. So 5 million is 50 lakh. So up to 50 lakh of the record that you can insert in a single snapshot. That is what. तो डेटा लोडर के थ्रू 4000 कोई बड़ी बात नहीं है, 4999 थी कोई बड़ी बात नहीं. अप टू 5 million रिकॉर्ड दैट वी कैन इंसर्ट, वी कैन अपडेट, वी कैन अपसर्ट, वी कैन डिलीट, वी कैन हार्ड डिलीट, वी कैन एक्सपोर्ट देम. सो अप टू दिस मच ऑफ द कैपेसिटी वी कैन डू. तो जब भी हमें यूजर्स बल्क में क्रिएट करने होते हैं, एंड इफ वी आर हैविंग दैट ऑफ लाइसेंसेस, है ना, दैट मच ऑफ द लाइसेंसेस इफ वी आर हैविंग, so we actually don't use this. We never go with new user, we never go with add multiple, rather we use data loader for this. Okay, so these are the two techniques with which can create the users inside, bulk users inside the organization. Now this was the first thing. Second thing, आपको पता होगा कि जब भी मैं कोई नया यूजर क्रिएट करता था, आई यूज्ड टू गेट वन ईमेल, तो जो ईमेल मेरे को मिलता था, I need to activate that. I need to go with that email. मुझे ये email पे जाना पड़ता था, support@salesforce.com, and there I need to activate them. तो अभी ठीक है, चलिए users I can create it in the bulk. I can create 10, 15, 20, 100, 1000, 10, whatever. I can create users in the bulk. लेकिन जब उसको activate करने की बारी आती है ना, तो ये activation bulk में नहीं हो सकता. If you created 5 users, you individually required to activate them 5 different times. एक एक करके सबको activate करना पड़ेगा. If you created 500 users, you need to activate them 500 different times. If you created 4999 chatter user, you need to activate them 4999 times. यहाँ से तो user creation हो जाएगा with the help of data loader. We can insert the user, inside the user object, we can insert the record. लेकिन यहाँ पे आके आपको एक एक रिकॉर्ड को ही एक्टिवेट करना. तो चलो, अब ये क्वेश्चन जब आया इंटरव्यू में तो कैसे आंसर करें, ठीक है, कैसे आंसर करें. When they ask you this in the interview, can we create users in the bulk, can we create multiple users inside the Salesforce? The answer is yes, we can do that. And if it's yes, what's the consideration? So yes, we can do that. We can, either we can create, either we can use this add multiple user button, so that, this will help you to create at least 10 users in a single time. In a single time, you can create at least 10 users. 10 users in a time you can create with this button. And if you want to, insert more than 10 records, then you could go with the data loaders. That is the second technique. But yes, there is a consideration. What is that? Although we can create users in the bulk, we cannot activate them in the bulk. We cannot activate them in the bulk. This is something which is, still manual. You need to go to activate one user at a time. You need to go to every email and activate them one by one. So this is the drawback. If I create multiple users, yes, I can do that because the Salesforce allow me that tool. I have a data loader tool with me which can, store multiple records inside any object, and creating a user means creating a user record inside the user object. So I can do that. But problem is that I need to activate them individually. So you need to tell this, you need to tell. दोनों बातें बतानी पड़ेंगी. यहाँ पर आपको दोनों बातें बतानी पड़ेंगी. यहाँ हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि जब भी हम ऐसा करेंगे, हमको यूजर्स को ना 1 by 1 ही एक्टिवेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये एक डिस्कशन में रह गया था लास्ट टाइम. आई रिमेम्बर दिस, सो आई हैव टेकन दिस. चलो, अब दूसरा क्वेश्चन. What are the steps of creating the user?
तो हो गया अपना. What are the steps of creating the user that we have done? What are the steps? Yes, what are the steps? What are the steps? These are the steps. If I wanted to create a user, there are three things I should be known. First thing, I should assign him a license. I should assign him a profile. I should assign him a role. Assigning the license and the profile is mandatory. It's required. The role assignment is something which is optional. You can assign it later also, you know. Without assigning the role, we can create the user. If I ask you what are the steps, these are the three steps. These are the three steps of creating the user. These are the three steps of creating user. ठीक है, चलो. ये तो हो गया steps of creating the user. You know, these are what? These are the steps of creating the user. Now, let's go to this question. You know, let's go to this question. Say, okay, we create the user. चलो, हमने users तो create कर ली. How can we delete the user? Next, yeah. How can we delete the user? How can we remove the user? You know, how can we delete the user? How can we remove the user from Salesforce? What are the steps? What are the different steps to delete a user? तो आप बहुत ध्यान से सुनो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. ये बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा लोग इसी में फंसते हैं. सो प्लीज राइट इट डाउन. यू नो, प्लीज राइट इट डाउन बिकॉज आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आपको कब तक याद रहेगा ये. प्लीज राइट इट डाउन. What are the steps of deleting a user? How you can remove a user? What are the steps of creating a user? ये हो गया. ठीक है. There are three steps. Assign them license, assign them a profile, and assign them as a role. If you don't assign him a role, you can still create a user. Okay. But without assigning the license and profile, you cannot create it. That means assigning a license, assigning a profile is mandatory. Assigning a role is optional. Okay. The second is how you can remove a user. If you create a user, you also must have to know how you can remove the user from the Salesforce. If you create inside, you must know how to remove the user. The answer is there is no way. There is no way inside the Salesforce to remove a user. Once the user is created, it cannot be. There is no way. There is no way with the configuration, even with the customization. There is no way. That means with the admin, with the development module, though with the admin, there is no way. Though with the development, there is no way. You cannot do it. You cannot remove a user from the Salesforce. There is no delete button over here. There's no delete button. There is no way from the admin. Nor even if you write down the triggers, again, you cannot, you know, not with the DML statements. No. There is no way. There is no way. You cannot delete a user. There is no way to remove a user from the Salesforce. Remember this. Please write it down. Please write it down. और बिल्कुल दिमाग में घुसा लो इसको. बिल्कुल घुसा लो. They will not ask you this in very straightforward way. Can we remove a user? No. They could ask you like this. What are the different steps of creating a user? You answer. Then he asks, okay, now tell me what are the steps of removing a user? There is no way to remove a user. Once the user is created from the inside the Salesforce, we cannot remove it. We cannot remove any user from the Salesforce. There is no way, nor with the admin, not with the admin, nor with the development. There is no way. आप कुछ नहीं कर सकते. एक बार यूजर बन गया, you cannot delete it. You cannot delete it. Remember. ना तो कोडिंग से कर सकते हैं इस चीज को और ना ही एडमिन से कर सकते हैं. यूजर बन गया, डिलीट नहीं हो सकता. ठीक है, नहीं हो सकता. ये बात तो एकदम लिख लो, इस चीज को दिमाग में डाल दो इस चीज को. Once the user has been created, it cannot be removed from the Salesforce. Never, ever, ever. It cannot be removed from the Salesforce. कभी नहीं हो सकता. ठीक है. Now they will ask you this. अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है. ठीक है. देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है. प्लीज ऑल ऑफ यू कान खुले रखो, ध्यान इधर रखो, कहीं और कुछ मत सोचो और जितना हो सके लिखते चले जाओ. बिकॉज अभी जो डिस्कशन कर रही है बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला चीज हमने सीखा कि यूजर कैसे क्रिएट करना. दूसरा सीखा बल्क में कैसे क्रिएट करना. बल्क में क्रिएट करते तो कंसिडरेशन क्या है, एक एक को एक्टिवेट करना, ये भी सीख लिया. ठीक है. तीसरा चीज, यूजर क्रिएट कर लिया, डिलीट कैसे करेंगे. तो डिलीट होता ही नहीं है. यूजर बन गया, नहीं निकाला जा सकता. यू कैन नॉट रिमूव यूजर फ्रॉम द यूजर ऑब्जेक्ट. यूजर ऑब्जेक्ट पे डीएमएल स्टेटमेंट नहीं चलती है. यूजर ऑब्जेक्ट पे डिलीट नाम का डीएमएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता ही नहीं है. डिलीट यूजर पे लगाए सकेंगे तो एरर ही आता है. So there is no way with the admin and a configuration. There is no way with the programming and a customization. There is no way from the admin. There is no way from the development. There is no way from the configuration. There is no way from the customization. Once the user is created, you cannot delete it. Okay? Clear है? Absolutely clear है?
कोई एम्बिग्विटी नहीं है, दिमाग में कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, सवाल ही नहीं उठता। बहुत देर से रिपीट कर रहा हूँ कि यूजर बन गया, डिलीट नहीं हो सकता, बस यही आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन। ओके ठीक है, चलो बात समझ में आ गई, एक्सेप्टेड है। लेकिन मान के चलिए कि एक यूजर है, हम चाहते हैं कि इसने अब लॉगिन नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ यूजर, कस्टमर यूजर, ठीक है। नाउ दिस यूजर हैज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, इसने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया। प्रोबेबली दिस मैनेजर यूजर, टेस्टिंग यूजर, सम ऑफ देम हैज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी डोंट वांट दैट दिस यूजर शुड बी लॉग इन इनटू द ऑर्ग। वी डोंट वांट दिस यूजर टू बी इनटू द ऑर्ग, ठीक है, उसको डिलीट नहीं कर सकते, बट वी मस्ट हैव सम वे टू कंट्रोल द लॉगिन। यू नो, वी वी डोंट वांट हिम दैट कि वो लॉगिन करना चाहिए, उसने लॉगिन करना चाहिए। तो इसकी तीन टेक्निक होती, दो अभी सिखा रहा हूँ, एक बाद में सिखाऊंगा। If I wanted to stop a user from the login into the org, what I can do? I cannot delete. Yeah, of course I cannot delete it. But if I wanted to prevent any user from the login, what I can do? Prevent any user from the login, I can do two things. I can either deactivate him, either freeze him. I can either deactivate that user, I can either freeze that user. So these are the two ways. There is no way. Once a user is created, there is no way to delete the user. Not from the configuration, means admin, nor from the customization programming. Clearly it happens. But now to prevent any user to get login, to prevent any user to get the access on the organization, we can do two things. Either we can deactivate them, either we can freeze them. The entire theory has been written. You need to go with this. I'm just telling you what is the difference between deactivating any user and the freezing any user. Theory is here. Theory is here. You need to read this. आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा. And everything whatever you want is has been written. सब कुछ लिखा है. वैसे का वैसे याद करो, इंटरव्यू पे बोलते कोई प्रॉब्लम. ठीक है. See, when I freeze any user, if I freeze any user, see, I'll show you one thing. I'll show you one. Let me go to this system over here. And secondly, let's go to company information. Now I can see over here that platform, platform out of three, all three has been consumed. I don't have any license, I don't have any license. Here also it's indicating me that all three platform licenses has been consumed. Now let me go to any user. For example, let me go to this customer user. Okay. I go to this customer user. I want that this user shouldn't be logged in. So first technique is freeze. Freeze karna. Let me just freeze. And now it's freezed. Freeze ho gaya hai. Freeze ho gaya hai. Now this user cannot log in. ये जो user है now entering with this username and the password that we have decided on that time activation पे. Now if we try to log in, he cannot log in. Why? Because we have freezed him. We have freezed him. But if I freeze him, if I freeze him, let me come to the overview. Let me refresh this window and let me refresh this window also. What I see, license still is not with me. Licenses उसके पास ही है अभी भी 3 licenses consumed है. 3 licenses consumed है. The license return नहीं हुआ. License return नहीं हुआ है. Okay. Unfreeze. Unfreeze कर दिया. He can now log in. He can now log in. Okay. तो freeze किया तो लॉगिन नहीं कर सकता, वो अनफ्रीज कर दिया, लॉगिन कर सकता है. ठीक है. अब जरा एडिट करते हैं. अब दूसरी टेक्निक जो है एक्टिवेट को हटा दो, यानी डीएक्टिवेट हो चुका है. नाउ ही इज डीएक्टिवेटेड. सेव इट. सेव इट. So this user is now deactivated. Now let's see. Let me refresh this window. Let me refresh this. Now see what happens. एक लाइसेंस वापस आ गया. Out of 3, 2 has been consumed, 1 has returned back. See, 1 has returned back. So this is what, whenever you deactivate any user, the license that was given to him returns back. Whenever you deactivate any user, the license that was given to him returns back. And this doesn't happen. इन दोनों सूरतों में एक चीज कॉमन है. आप डीएक्टिवेट करेंगे या फिर आप फ्रीज करेंगे, दोनों सूरतों में एक चीज कॉमन है कि वो यूजर लॉगिन तो नहीं कर सकता, ये तो पक्की बात है. लेकिन एक चीज और है, अगर आप फ्रीज करेंगे, चलिए वो लॉगिन तो नहीं कर सकता लेकिन लाइसेंस उसी के पास रहेगा. अगर हम उसे डीएक्टिवेट कर देते हैं, अगर हम उसे डीएक्टिवेट कर देते हैं, तो इस सूरत में वो लॉगिन भी नहीं करेगा और लाइसेंस हमें वापस मिल जाएगा. लाइसेंस हमें वापस मिल जाएगा. ठीक है. तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में. और ये रेट लिखा हुआ है दोनों पर ही.
डीएक्टिवेटिंग अ यूजर विल अवेलेबल द यूजर लाइसेंस, ठीक है, जो लाइसेंस आपने उसको दिया था वो वापस आ जाता है। फ्रीजिंग अ यूजर अकाउंट डजंट मेक द यूजर लाइसेंस अवेलेबल, वो लाइसेंस आपको नहीं मिलता, उसी के पास रहेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में ना, दिस इज द डिफरेंस कि इफ यू फ्रीज देम तब भी लॉग इन नहीं कर सकता, डीएक्टिवेट करेंगे तब भी लॉग इन, दोनों में कॉमन क्या है, आप डीएक्टिवेट करें आप फ्रीज करें, दोनों सूरतों में वो यूजर लॉग इन नहीं कर सकता। लेकिन आप फ्रीज करेंगे तो लाइसेंस उसी के पास रहेगा, आप डीएक्टिवेट करेंगे लाइसेंस आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। अगर उसे एक्टिवेट करना है तो आपके पास वो लाइसेंस होना चाहिए, अगर वो लाइसेंस नहीं है आपके पास तो आप उसे एक्टिवेट नहीं कर सकते कभी, बिकॉज मेरे पास है सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस, इसलिए मैं आई एम रीएक्टिवेटिंग दैट यूजर। तो अब मैंने उसे एक्टिवेट किया, चलिए अब मैं देख लेता हूँ कि वापस क्या हुआ, वापस लाइसेंस उसको मिल गया है, यहाँ पर भी देख लेता हूँ, देखिए वापस लाइसेंस मिल गया, ऑल थ्री कंज्यूम्स यू नाउ हैव जीरो, ये फर्क है डीएक्टिवेट करने में और फ्रीज करने में, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, चलिए फिर से रिवाइज करता हूँ क्या पढ़ाया। सबसे पहले आपको ये पढ़ाया कि यूजर्स बल्क में कैसे क्रिएट कर, तो आपके पास दो तरीके हैं इसके, आपके पास दो तरीके हैं, आप चाहें तो ऐड मल्टीपल यूजर्स, लाइट गई है, मैं मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ, लाइट गई है, ठीक है। पहली चीज क्या सीखी हमने कि हाउ टू क्रिएट द यूजर्स इन बल्क, अगर आपको 10 या 10 से कम यूजर क्रिएट करने हैं आप ऐड मल्टीपल यूजर्स का बटन यूज कर सकते हैं, आप इस इंटरफेस से एटलीस्ट 10 यूजर्स एक समय में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा क्रिएट करने हैं, तो फिर ये टेक्निक सही नहीं है, आपको डेटा लोडर्स यूज करने चाहिए दोनों सूरतों में। एक बात जान ली कि आप जितने यूजर्स क्रिएट करना चाहते हैं आपके पास उतने लाइसेंस होने चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहली चीज जो आपको देखना है वो ये देखना है कि आप जितने यूजर्स क्रिएट करना चाहते हैं उतने लाइसेंसेस आपके पास है या नहीं, पहली चीज सीखी। दूसरी चीज आपने ये सीखी कि अगर हम यूजर क्रिएट करते हैं तो क्या हम यूजर को डिलीट या रिमूव कर सकते हैं, आंसर है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो फिर आप कैसे किसी यूजर को रोकेंगे कि वो लॉग इन करना चाहिए, तो उसकी दो टेक्निक है, या तो आप उसे डीएक्टिवेट करिए या फिर आप उसे फ्रीज करें। अगर आप यूजर को फ्रीज करते हैं इसका मतलब वो लॉग इन नहीं कर पाएगा लेकिन लाइसेंस उसी के पास रहेगा। अगर आप डीएक्टिवेट करते हैं यूजर को तो भी वो लॉग इन नहीं करेगा लेकिन लाइसेंस आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर एक सिनेरियो आता है, यहाँ पर एक सिनेरियो पूछा जाता है कि आप ये डिसीजन कब लेंगे एज एन एडमिन, कि आप ये डिसीजन कब लोगे कि व्हेन विल बी द, आई मीन व्हेन यू एक्चुअली टेक दिस डिसीजन टू डीएक्टिवेट और रादर फ्रीज अ यूजर। तो देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल आप दे सकते हैं, मुझे उम्मीद है आप सब लिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये चीजें जो पूछ रहा हूँ मैं सारी इंटरव्यू में पूछी जाती है, सारी सारी बिल्कुल, कि what will be the scenario where you can decide कि either you should deactivate or rather you can freeze the user। देखिए if there is a user, for example if in my organization if my one of my team member and she is going for a long leave, मतलब उसको कुछ तो भी लंबी लीव पे जा रहा है वो, for example he is going for the marriage, he is going for the honeymoon probably, if there is I mean if some of the employee कोई है जो she is going for the maternity leave probably of the 3 months, कोई लड़का है जो पैटर्निटी लीव पे जा रहा है ना, कंपनी से मिलता है पैटर्निटी लीव में मिलता है, मैटरनिटी ज्यादा मिलता है, पैटर्निटी यू गॉट एटलीस्ट 1 मंथ तो भी मिलता है। सो probably if someone is going for a long leave, अगर ऐसी कोई सूरत है कि जिसमें बंदा लॉन्ग लंबी लीव पे जा रहा है लेकिन हाँ वापस आके ज्वाइन करेगा, तो वी डोंट डीएक्टिवेट, वी व्हाट वी डू वी फ्रीज, ताकि एट द ड्यूरेशन ऑफ दैट टाइम जब वो हॉलीडे पर है, so he would not be able to log in because we actually we want that company resources shouldn't be used apart from the organization. We wanted that if something is very critical, if something which is very confidential, then we shouldn't want कि जब बंदा है तब यहाँ पर ऑन प्रीमाइस है तभी काम करे, अदरवाइज नहीं करे। तो अगर कोई छुट्टी पे जा रहा है तो आप उसको फ्रीज कर सकते हो, बट इफ समवन हैज लीव द ऑर्गेनाइजेशन, किसी ने छोड़ दिया है तो उस यूजर का क्या किया जाए, तो नाउ डीएक्टिवेट दैट यूजर, डिलीट नहीं कर सकते ना, डीएक्टिवेट दैट यूजर, तो आपको उसका लाइसेंस वापस मिल जाएगा ना, यू कैन असाइन दैट लाइसेंस टू समबडी एल्स, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है, जब आपसे ये सवाल पूछा जाए कि ऑन व्हाट बेसिस यू कैन डिसाइड कि कब डीएक्टिवेट करना कब फ्रीज करना, सो इफ द पर्सन इज गोइंग फॉर अ लीव देन वी नीड टू फ्रीज हिम, इफ पर्सन इज लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन देन वी नीड टू डीएक्टिवेट हिम। सो दिस इज द सिनेरियो, ओके। नाउ देयर आर फ्यू मोर थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू यूजर मैनेजमेंट, ये खत्म हो जाए तो फिर मैं से क्या आगे से शेयरिंग पे जाने वाला हूँ, शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो दो चार चीजें और हैं यहाँ पे जो मैं आपको बता देता हूँ, प्रोबेबली आज कितनी चीजें हो पाएंगी, बिकॉज आफ्टर दैट वन इंपॉर्टेंट थिंग रोल हायरार्की, और रोल हायरार्की से रिलेटेड आगे शेयरिंग है जो आपको पढ़ना है। तो कुछ और चीजें हैं जैसे कि एक यूजर का पासवर्ड या सारे यूजर्स का पासवर्ड कैसे एक्सपायर कर देना। तो आप चाहें तो सिंगल सिंगल यूजर्स का, मान के चले कि मैं यूजर था, मैं पैटर्निटी लीव पे था 2 महीने की, मेरे को फ्रीज किया गया,
and then I resume after 2 months, और फिर मुझे अपना पासवर्ड याद नहीं आ रहा है. So I write a mail to my admin. मैं बोला यार मैं almost 2 महीने बाद लॉगिन कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा यार, because I have not written my password somewhere. तो फिर ऐसी सूरत में क्या करेगा एडमिन, जो एडमिन है वो बोलेगा ठीक है चल मैं तेरा पासवर्ड रीसेट कर देता हूँ, है ना. तो तुझको एक मेल आ जाएगा ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यू विल गेट अ मेल. So how to reset the password? Just open this, navigation has been written, don't worry. Setup, administrator, manage user, reset password. The entire navigation has been written, same thing. So go to the user and select that user. If I wanted to, for example, customer user, I need to reset the password for this. Just select the user and give this reset password. तो आप reset password कर दोगे तो उसका ये जो email है, यहाँ पर he is going to get the same link. यहाँ पर ऐसे ही link आएगा कि now verify your account and verify. उसमें फिर आपने password डालना पड़ता है. सेम चीज जैसा इसके पहले इंटरफेस है, तो वही सेम चीज, यही सेम मेल फिर से आ जाएगा उसको. एंड देन ही कैन डिसाइड हिज ओन ईमेल पासवर्ड क्या रखना है. तो दिस इज फॉर इंडिविजुअल, हाँ एक बार में करना है तो ऑब्वियसली हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी सही तरीका है. बट एक दूसरा तरीका है इसका कि एक बार में सारे सबके रीसेट करना है, तो दूसरा भी एक तरीका है अपने पास में. तो एक तो ये तरीका इंडिविजुअली एक एक के पासवर्ड को रीसेट कर देना, और एक साथ करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं ऑफकोर्स. हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, एक ही बार में सबके रीसेट हो जाएंगे, सबको ईमेल चला जाएगा. ये एक तरीका है. दूसरा है अगर सबके पासवर्ड को हमें एक्सपायर करना है. एक्सपायर करने का देखो एक फर्क समझो. अगर मैं इस तरह से रीसेट करता हूं तो सबको ईमेल आ जाएगा, एंड देन एवरी वन ऑफ देम आर एबल टू रीसेट देयर पासवर्ड. वो नए पासवर्ड डाल सकते हैं, राइट. लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये नहीं हो, मतलब सबके पासवर्ड एक ही बार में एक्सपायर हो जाए और पूरा का पूरा टीम जो है वो कोई भी अब लॉगिन नहीं कर पाए, ये कब सिनेरियो बनता है? व्हेन द रिक्वायरमेंट इज ओवर और पूरा बिजनेस यूनिट दूसरे प्रोजेक्ट पे चला गया. ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं कि सबके पासवर्ड एक्सपायर करना है. पासवर्ड रीसेट करना और एक्सपायर करने में फर्क है. रीसेट करने पर आपको एक चांस है कि आप दूसरा पासवर्ड जनरेट कर सकते हो. एक्सपायर करने का मतलब बस बात यही खत्म हो गई. बात यही खत्म हो गई. अब इसके आगे कोई नया पासवर्ड नहीं होगा, आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक एडमिन नहीं चाहेगा, और यू कैन नॉट लॉग इन. तो ये एक और तरीका होता है रोकने का, अगर हम पासवर्ड एक्सपायर करें तो. लेकिन इसमें इंडिविजुअली नहीं होता, इसमें एक ही बार में सबका होता है. ये एक चीज, ये एक ड्रॉबैक है. ठीक है. इसीलिए जनरली ये जैसे मैंने बताया कि डीएक्टिवेट और फ्रीज करना यही बताते हैं, और क्योंकि उसमें इंडिविजुअल बेसिस पे आप किसी को भी डीएक्टिवेट या फ्रीज कर सकते हैं. पासवर्ड एक्सपायर करना भी एक तरीका होता है, लेकिन क्या है प्रॉब्लम है, पासवर्ड एक्सपायर एक का नहीं होता, पासवर्ड होता है सभी का. देखो कैसे. Go to setup, go to administer. Under the security control, you have this option. Let me show you that. So, administer menu, security controls. Administer में security control. Yes, you expand this, and here you have this password policies. Expire all passwords. See, and if I click this, expire all passwords. अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दूंगा तो जितने भी यूजर्स है, जितने भी यूजर्स हैं सबके पासवर्ड एक्सपायर हो जाएंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट एडमिन को छोड़ के. ठीक है. तो ये कब करते हैं हम लोग? जब बिजनेस यूनिट शिफ्ट हो जाता है तब ये करते हैं. तो इसको छोड़ के, ट्रेनिंग माय सेल्सफोर्स को छोड़ के, और स्टैंडर्ड यूजर जैसे कि चैटर, इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी, ये स्टैंडर्ड यूजर्स थे. कस्टम यूजर कौन कौन से हैं? कस्टम यूजर है यूजर कस्टमर, ये हमने क्रिएट किए वो. ये सारे यूजर्स के पासवर्ड एक ही बार में एक्सपायर हो जाएंगे. ठीक है. तो अगर आप ये कर दोगे तो, और उनको कोई ईमेल भी नहीं जाएगा, आई मीन इन दैट केस दे विल नॉट बी एबल टू. फिर हमको उसको ना अलग से पासवर्ड की लिंक जनरेट करके देना पड़ेगा, फिर से एक्टिवेशन करवाना पड़ेगा. तो ये कब करते हैं हम लोग? जब सारा का सारा बिजनेस यूनिट शिफ्ट हो जाता है. ठीक है. तो ये एक और टेक्निक है, आप यूजर को रोक सकते हैं, लेकिन एक यूजर को नहीं. इसमें ये प्रॉब्लम, इसलिए ये नहीं सिखाया जाता है. सिखाते क्या है? डीएक्टिवेट करना या फ्रीज करना. लेकिन एज एन ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज जनरली कोई बताता नहीं. इसके बाद में है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ग्रांट दी अकाउंट लॉगिन एक्सेस. नाउ सी, आई टेल यू वन थिंग. लेट मी show you. Now, for example, let me first log in into the any of the account. For example, let me log in into the development users account, or rather the customers users account. Okay, let me copy this. Go to any other browser, Mozilla Firefox. For the first time, probably it will ask me for the notification also.
So here what I'm doing, I'm logging this customer user ID है ना, या customer user की login कर रहा हूँ मैं. So I'm entering the user ID and I'm entering the password जो मैंने उस वक्त डाला था. So I'm entering this username and the password. ठीक है. So verification code, that was I was telling कि ये verification code send करेगा. For the first time it's going to send the verification code. Here I am expecting. Yes. So Firefox, this is the verification code. Hmm. Hmm. Okay. So we are now into the customer user, and probably see. अब मान के चलो कि let's discuss this as an example. Okay, this particular, this particular user was doing something, and he was facing some sort of issues. अभी इसको कुछ issues आ रहे हैं कि वो कुछ काम कर रहा था, but उसको कुछ चीजें जम नहीं रही, या rather he is actually facing some sort of issues with the kind of interface with him, है ना. तो अब ये यूजर जो है, तो ही इज ऑन अ रिमोट लोकेशन, ये किसी और लोकेशन पर है, इसका एडमिन कहीं और लोकेशन पे बैठा हुआ है. हु इज द एडमिन? हु इज द एडमिन? दिस इज द एडमिन. ठीक है. Training my Salesforce. This is the admin. This admin is sitting in the Bangalore and this user is sitting in the Nagpur. Okay. Let's take this कि ये दो अलग-अलग जगहों पे बैठ के काम कर रहे हैं. And then he's facing some sort of issues. उसको कुछ तो भी इंटरफेसेस में दिक्कत जा रही है. तो he initially contact the admin. एडमिन को कांटेक्ट किया. एडमिन, so admin बोल रहा है कि ठीक है, तो I mean admin has tell him something but then he is not able to solve this. तो वो क्या कर सकता है कि there are two possibilities कि अभी तो खैर ये चीजें वैसे ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ बिकॉज स्क्रीन शेयर करके हो जाता है. बट चलो एक एग्जांपल ये दे रहा हूँ मैं कि दिस यूजर वांट्स कि एडमिन खुद लॉगिन करके इसको देख ले कि यहाँ पे क्या इशू जा रहा है. तो अब इसके लिए क्या इस यूजर ने अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे देना चाहिए ताकि एडमिन लॉगिन कर पाए? तो एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए. वी शुडंट शेयर दिस, चाहे भले ही हमारा एडमिन क्यों ना हो. हमको अपने आईडीज और पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करने चाहिए, राइट. तो फिर एडमिन कैसे लॉगिन करेगा? मतलब इफ ही वांटेड कि एडमिन यहाँ पे लॉगिन करे एंड एडमिन देखे कि भाई ये इश्यूज जा रहे हैं, तो एक तरीका तो ये है कि ये स्क्रीन शेयर करके हो जाता है वैसे, लेकिन हम उस एस्पेक्ट पे बात नहीं कर रहे हैं. तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि क्या इस यूजर ने अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर कर देना चाहिए इस यूजर के साथ ताकि वो लॉगिन कर ले और देख ले. तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए. मतलब ऐसा सही नहीं है, एथिकली सही नहीं है. ये हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए इस चीज से. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. तो फिर सेल्सफोर्स में इसका एक तरीका है, आप ये पर्टिकुलर यूजर अपने अकाउंट की एक्सेस ग्रांट कर सकता है इंटरनली, बिना बिना लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर की. कैसे? तो उसको कहते हैं ग्रांट अकाउंट लॉगिन. अकाउंट की लॉगिन एक्सेस ग्रांट करना. कैसे? तो चलिए, तो जो भी यूजर आपको है ना, आप डेवलपमेंट यूजर, मैंने कस्टमर यूजर लिया, तो आप कोई भी यूजर से लॉगिन करें और आपके नेम पर एक्सपैंड करें. सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है. माई सेटिंग्स, पर्सनल, जो भी, तो आपको दिखाता हूँ मैं. पहले आप ये अपने नेम पे एक्सपैंड करें. उसके बाद में माई सेटिंग्स पे जाएं. दिस इज द नेम कस्टमर. तो डेवलपमेंट होता माई सेटिंग्स पे जाइए. माई सेटिंग्स पे जाने के बाद में जो पर्सनल टैब है, ठीक है, इसको एक्सपैंड कर, और सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, डोंट वरी. ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन रिटन ओवर हियर. ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है. तो पर्सनल पे जाएं. देखिए यहाँ पर एक चीज लिखा है, ग्रांट अकाउंट लॉगिन एक्सेस. उस पर क्लिक करें. तो आप किस किस को दे सकते हो? आप अपने एडमिन, अपने कंपनी के एडमिन, यानी जिसने आपको ये अकाउंट क्रिएट करके दिया, आप उसको एक्सेस दे सकते हो. और दूसरा आप salesforce.com को दे सकते हो. ठीक है. ये दो लोगों को आप एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं. यू कैन प्रोवाइड दिस एक्सेस ईदर टू द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटर और आप salesforce.com की सपोर्ट को, बिकॉज दीज आर द टू ऑथेंटिकेटेड पीपल. दे आर नॉट गोइंग टू यूज, आपका कुछ गलत नहीं करेंगे. ठीक है. इसके अलावा कोई भी रहे तीसरा, तो वो गलत कर देगा. ठीक है. और एक चीज और, जब हम सपोर्ट लेते हैं, ठीक है, अभी देखो बात निकली है, तो बता रहा हूँ मैं कि जब हम सपोर्ट लेते हैं ना, तो लॉगिन एक्सेस कभी देना नहीं चाहिए. आपको मैं सेशन आईडी का कंसेप्ट सिखा दूंगा आगे चल के. लॉगिन आईडी पासवर्ड दोगे ना, ट्रैक हो जाता है. मैं बताऊंगा कैसे, अभी है आगे में, कि अगर हम कभी लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर करते हैं ना, तो सेल्सफोर्स सब कुछ ट्रैक करता है. मतलब उसने कहाँ से लॉगिन किया, कौन सी सिटी से लॉगिन किया, उसका आईपी क्या था, और लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइमिंग, सब कुछ ट्रैक हो जाता है. तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर चाहे ना, तो पूरा 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 ब्यौरा निकाल के, और बाद में वो चीज़ें पता है कि उसके ऊपर में ये हो जाता है, मतलब आपके नाम से एक एक्सक्लेशन हो जाता है. बाकायदा उसमें एक एक्सेल शीट रहती है जिसमें लिखा रहता है कि इस बंदे की लॉगिन यूज हुई है.
फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिमोट लोकेशन। तो सपोर्ट लेने के भी तरीके होते हैं। सपोर्ट ऐसे नहीं लिया जाता कि बस अपना आईडी पासवर्ड उठा के दे दिया, भैया तू लॉगिन करके देख लेता। ऐसा करोगे तो फंस जाओगे। इसका तरीका होता है, मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी, सब सिखा दूंगा मैं। चलिए फिलहाल तो बात कुछ और चल रही है। बात अभी ये चल रही है कि अगर हम अपने एडमिन को लॉगिन एक्सेस देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईडी और पासवर्ड शेयर नहीं करना है। आपको करना क्या है, ये गो टू दिस यूजर प्रोफाइल, गो टू माई सेटिंग में जाइए, पर्सनल को एक्सपैंड करिए एंड देन गो टू दिस ग्रैंड अकाउंट लॉगिन एक्सेस। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप अपने कंपनी की या फिर salesforce.com जहाँ से भी आपको सपोर्ट चाहिए, दो ही लोग हैं और कोई तीसरा, उसको आप एक्सेस दे सकते हैं। अभी एक्सेस आप कितने दिन के देना चाहते हैं, 1 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 1 मंथ, जैसा भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्टेड दिस एक्सेस फॉर द 3 days, 3 दिन की एक्सेस दे छोड़ता हूँ या 1 दिन की एक्सेस, जैसा भी। तो दिस इज गोइंग टू बी एक्सपायर ऑन दिस 19, देखो आज 16 है तो 19 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, 17 को एक्सपायर, जैसा भी आप डिसाइड करें। सो आई डिसाइडेड कि इसको एक्सेस मिलनी चाहिए 3 दिन की। 3 दिन तक मेरा एडमिन जो है, ठीक है ना, एक्सेस ऑन, ठीक है ना, एक्सेस ऑन, सेव। ठीक है, सेव चेंज हो गया, चेंजेस आपसे सेव, दैट्स इट, हो गया, ये चेंजेस आपसे सेव हो चुके हैं। अब आई कैन लॉग आउट फ्रॉम हियर, मैं लॉग आउट भी कर सकता हूँ बिकॉज मैं दो अलग अलग जगह पे हूँ। सो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। एक चीज आप ऑब्जर्व करना, अभी कस्टमर के नाम सामने देखो लॉगिन का बटन आ चुका है, इसके पहले नहीं था, इसके पहले ये चीज नहीं, अब इसके पहले ये चीज ऐसे, नो एक्सेस, लेट से सेव इट। और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो हाउ डज दिस इंटरफेस लुक्स लाइक, यू नो हाउ डज दिस इंटरफेस लुक लाइक। हट गया, ठीक है। देखो आप कस्टमर के सामने से लॉगिन का ऑप्शन हट गया, लेकिन अगर आप किसी कोई भी यूजर जब एक्सेस प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल आई एम प्रोवाइडिंग फ्रॉम दी वन, यू नो, एक्सेस प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड नाउ लेट मी सेव, तो अब ये वन डे एक्सपायर हो गया। अब मैं यहाँ पर अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखो कस्टमर के सामने एक और ऑप्शन आ गया, वो हो गया लॉगिन का ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया लॉगिन का ऑप्शन। नाउ लेट क्लोज फ्रॉम हियर। अब आप एक चीज गौर करो, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि यूजर दिस एडमिन now can log in into the customer users account directly, कैसे, just by pressing this। अब देखो मैंने लॉगिन प्रेस किया और मैं अपने अकाउंट से निकल के कहाँ चला गया, यूजर के अकाउंट। क्या मैंने इसके लिए आईडी डाला, नहीं। क्या मैंने इसके लिए पासवर्ड यूज किया, नहीं। लेकिन स्टिल आई कैन यूज हिज अकाउंट, आई कैन यूज, और जो भी मुझे जो भी कुछ सेटिंग्स करनी, जो कुछ करना है, विदाउट पासवर्ड, ऑफ कोर्स विदाउट पासवर्ड, बिल्कुल सही। तो ये है डायरेक्ट वे लॉगिन करना। ठीक है, ये डायरेक्ट वे। लेकिन अब यहाँ पर एक ड्रॉबैक है, लॉग आउट करो आप सब जगह से लॉग आउट, ठीक है, आप सब जगह से लॉग आउट करो। फिर इसको कैसे रिमूव करते हैं वो मैं अभी सिखाने वाला हूँ। और ये हमने इसके पहले भी देखा था जब हम यूजर्स को एक्टिवेट कर रहे थे, दैट टाइम आल्सो वी हैव सीन दिस थिंग। मैं नेटवर्क स्विच कर रहे थे। सो ये होता है ग्रैंड अकाउंट लॉगिन एक्सेस। अब हमने एक चीज ऑब्जर्व करी और इसके पहले भी ऑब्जर्व करी थी कि जब हम एक अकाउंट से लॉग आउट होते हैं तो वी एक्चुअली फोर्सफुली हम सारे अकाउंट से लॉग आउट होते हैं। इसके पहले आपको याद होगा जब हम यूजर्स को एक्टिवेट कर रहे थे, यू नो, हम साइड बाय साइड जब यूजर्स को एक्टिवेट कर रहे थे दिस विंडो, जब हम यूजर्स को एक्टिवेट करते थे तो हम फिर जैसे ही लॉग आउट होते थे तो वी वर एक्चुअली लॉगिंग आउट फ्रॉम एवरी विंडो, हम सब जगह से लॉग आउट होते। तो उसको कैसे अवॉइड करना, तो वो चीज आपको है कि हाउ टू प्रिवेंट दिस फोर्स री लॉगिन आफ्टर लॉगिन एज, कैसे। तो उसके लिए फिर आपको ये सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा, गो टू दी सेटअप एडमिनिस्ट्रेटर सिक्योरिटी कंट्रोल एंड द सेशन सेटिंग्स। ठीक है, सेशन सेटिंग्स में जाने के बाद में सेशन सेटिंग्स के अंदर फिर से एक सेशन सेटिंग सेक्शन रहता है और वहाँ पे एक चेक बॉक्स होता है, तो आइए देखते हैं क्या चीज़ है और इसका फायदा क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू दी सेटअप, गो टू दी administrator, and inside the administrator go to security control, inside the security this is session settings में क्लिक करिए। सेशन सेटिंग्स के अंदर फिर से एक और है सेशन सेटिंग्स, ठीक है, यहाँ जाइए।
अब देखिए यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, फोर्स री लॉग इन आफ्टर लॉग इन एज अ यूजर, ये चेक्ड है, इसको अनचेक करो। ठीक है, इसको आप अनचेक करो। फोर्स री लॉग इन आफ्टर लॉग इन एज अ यूजर, ये चेक था, इसको मैंने अनचेक। ठीक है, इसको मैंने अनचेक किया और अब मैं सेव। अब इससे क्या बेनिफिट, इससे ये बेनिफिट मिलता है कि लेट मी वन सेकेंड गो टू द यूजर, और मैंने कस्टमर यूजर पे लॉग इन किया। कस्टमर यूजर पे लॉग इन किया, मुझे जो भी काम करना था ना कस्टमर यूजर पे जो भी काम करना था एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने वो चेंजेस किए। अब जब मैं यहाँ से लॉग आउट होता हूँ, इसके पहले क्या होता था, मैं पूरी तरह से लॉग आउट होता था, अब देखो क्या होता है। जब मैं यहाँ से लॉग आउट होता हूँ तो मैं पूरा लॉग आउट नहीं होता हूँ, मैं अपनी लॉगिन पे वापस आ जाऊँ। समझ में आई बात, मैं अपनी लॉगिन पे वापस आ जाऊँ। ठीक है, मैं अपनी लॉगिन पे वापस आ जाऊँ। ठीक है, ये इसका फायदा है। चलो, ये एक चीज। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है लॉगिन एक्सेस पॉलिसीज, इसको याद रखना क्योंकि ये काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, login access policies and setup audit trails. Setup audit trails. Let me show you something. Ziba. Ziba का आज इंटरव्यू। ठीक है, हाउ वाज द इंटरव्यू, दिस वाज माय क्वेश्चन। तो सॉफ्ट स्किल पे ज्यादा था, 2 to 3 क्वेश्चंस लाइक देयर वाज सेल्सफोर्स पे इनिशियल एक्चुअली इंटरव्यू था। तो मैंने पूछा सेल्सफोर्स क्वेश्चंस कौन से, तो रिपोर्ट्स, ऑडिट ट्रेल, रिपोर्ट्स और ऑडिट ट्रेल, ये है। एक तो रिपोर्ट्स के बारे में पूछा, उसको रिपोर्ट डैशबोर्ड, और दूसरा व्हाट डज दिस ऑडिट ट्रेल्स। ठीक है, ये उसको पूछेगा, आज ही इंटरव्यू हुआ ही। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये चीजें जो आप पढ़ रहे हो वो ऐसी वैसी नहीं है, ये एक्चुअल इंटरव्यूज में पूछी जा रही है। तो ये देखिए आज के इंटरव्यू में पूछा गया। चलिए, उसके पहले लॉग इन एक्सेस पॉलिसीज मतलब क्या होता है। सो वंस अगेन लेट मी ट्राई टू लॉग इन इनटू दैट फायरफॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज जो नजर आ रही थी हमको वो ये थी, देखिए भाई, कस्टमर यूजर ने अलाउ किया तो जाके एडमिन इसके अंदर लॉग इन कर पा रहा है, बराबर। डेवलपमेंट ने अलाउ किया नहीं, तो क्या एडमिन इस पे लॉगिन कर सकता है, डेवलपमेंट के अकाउंट पे नहीं कर सकता। मैनेजर यूजर ने अलाउ किया नहीं, तो क्या एडमिन मैनेजर पे लॉगिन कर सकता है, नहीं। टेस्टिंग पे कर सकता है, नहीं। तो इस यूजर ने अलाउ किया तो ही एडमिन इसके अकाउंट पे लॉगिन कर सकता है और देख सकता है कि क्या क्या काम है, और फिर लॉग आउट होकर वापस आ। जिस यूजर ने अलाउ किया है उसी के इसमें एडमिन लॉगिन कर सकता है। जिस यूजर ने अलाउ नहीं किया उस पर एडमिन का कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है। इस पे डेवलपमेंट मैनेजर टेस्ट। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कि वापस ये लॉगिन हटा लेता हूँ। भाई इसने, इसका काम निकल गया, इसका काम निकल निकल गया, ये बहुत ही मतलबी इंसान है, इसने एक्सेस हटा लिया। इसका काम निकल गया कस्टमर का, इसने एक्सेस हटा लिया। फायरफॉक्स इसीलिए यूज नहीं करता, इतने नोटिफिकेशन, इतने नोटिफिकेशन, अरे आई डोंट। काम निकल गया, गो टू माई सेटिंग्स, गो टू पर्सनल, grant account login access, change it what I want, I don't want to access it, that's it। ठीक है, एक्सेस हट गई। अब चलो यहाँ चलते थे, रिफ्रेश करते हैं। हो गया, एक्सेस हट गई, यहाँ से गई। तो ये तो कुछ ऐसा हुआ कि यार ये यूजर्स तो मैंने ही क्रिएट किए थे, कस्टमर, डेवलपमेंट, मैनेजर, टेस्टिंग, इनको तो हमने ही क्रिएट किया था, और आज ये हमको ही आंख बता रहे हैं। तब यूजर हमने क्रिएट करा और अब ये डिसाइड करेंगे कि हम इनके अकाउंट पे लॉगिन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मतलब मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मुझे अब इनकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी कि यार मैं तेरे अकाउंट में लॉग इन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मतलब तुम अलाउ करोगे तो मैं करूंगा वरना मैं नहीं कर सकता हूँ। ये तो गंगा उल्टी बह रही है। हम तो एडमिनिस्ट्रेटर है, फिर एडमिन होते हुए भी हम क्या, मतलब इनकी परमिशन लगेगी अपने को लॉग इन करने के लिए, नहीं। कोई जरूरत, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं। आई टेल यू वन पेज जिसके थ्रू आप किसी के अकाउंट पे भी लॉग इन कर सकते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ना। चलिए, गो टू सेटअप एडमिनिस्ट्रेटर सिक्योरिटी कंट्रोल लॉग इन एक्सेस पॉलिसीज। ठीक है, और देयर इज अ चेक बॉक्स एडमिनिस्ट्रेटर कैन लॉग इन इनटू इट। चलो चलो, देखो, ये एडमिन हो तो एडमिन की कॉलर हमेशा टाइट रहती है। तो गो टू सेटअप, गो टू एडमिनिस्ट्रेटर, गो टू सिक्योरिटी कंट्रोल। ठीक है, एंड सिक्योरिटी कंट्रोल, सो शो फॉर द गो फॉर द लॉग इन एक्सेस पॉलिसीज।
login flows, login access policy, ठीक है, login access policy, and there is a checkbox, manage support option. Administrator can log in as any, any. बट उसके पहले ये देख लो कि यूजर से कैसे दिख रहा है, हाउ डज दिस लुक्स लाइक, ये देखो जरा सा, ठीक है, यहाँ पे सबकी लॉगिन एक्सेस गई हुई है, किसी पर भी एक्सेस नहीं कर सकता। अब इसके बाद नाउ एडमिनिस्ट्रेटर कैन लॉग इन एज एनी यूजर, सेव इट, सेव हो गया। चलो यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश कर, सबके इसमें लॉगिन आ गया। अब एडमिन चाहे तो जिसके अकाउंट में चाहे उसके अकाउंट में लॉगिन, उसको पता भी नहीं चलेगा, और एडमिन किसी के भी अकाउंट में ताक झांक कर सकता है। कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जो एडमिन से छुपी रहेगी। कस्टमर का देखना है, कस्टमर को देख ले। डेवलपमेंट यूजर पे गया, डेवलपमेंट में क्या छेड़खानी करना है कर लिया, वापस लॉग आउट कर दिया, अपने अकाउंट में आ गया, ठीक है। मैनेजर पे लॉग इन किया, मैनेजर का देख लिया कि मैनेजर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लॉग आउट किया, मैनेजर से निकल के वापस अपने अकाउंट में आ गया। टेस्टिंग पे लॉग इन किया, टेस्टिंग यूजर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है सब कुछ दिख रहा है एडमिन को, लॉग आउट किया वापस अपने पास आ गया। तो अब ये है एडमिनिस्ट्रेटर की ताकत। So administrator can log in, administrator can log in into any's account. उसके लिए उसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, इंडिविजुअली ये परमिशन दे सकता है, लेकिन एडमिन को जरूरत नहीं। With the login access policies, with the login access policies, you have this option. There is an option. Administrator can log in as any user, and if you select this checkbox, yeah, and if you are the admin, you can log in into any sir, किसी के भी अकाउंट, और ये ऑप्शन दूसरी जगह नहीं मिलेंगे आपको। You are not going to get this option anywhere else, ठीक है। Let me show you that. If I as a developer के पास में Salesforce license है, ठीक है, Salesforce license है। Still, if I press the setup button, if I try to see this security controls, if I go to this, see, सबसे पहली बात तो यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं है, सिक्योरिटी कंट्रोल्स में वो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन है। इवन भी अगर मैं सेटअप ऑडिट ट्रेल को देखना चाहूँ, सेशन मैनेजमेंट, तो ये ऑप्शन ही नहीं है इसके पास में, देखिए। तो भले ही ये कोई दूसरा यूजर हो, फॉर एग्जांपल आई ट्राई टू विद दी लॉगिन डेवलपमेंट यूजर जिसके पास सेल्सफोर्स लाइसेंस है, सेल्सफोर्स लाइसेंस है इसके पास में, अगर मैं इसके इसमें जाके भी देखता हूँ, सी द सिक्योरिटी कंट्रोल्स एक्सपैंड करता हूँ, हियर आल्सो देयर इज नो ऑप्शन। वो ऑप्शन सी क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऑप्शन इनेबल्ड नहीं है इसको। तो ऐसा नहीं कि सेल्सफोर्स लाइसेंस है तो सारी चीजें मिल जाएगी, नहीं, ही मस्ट बी अ सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर। वो एडमिनिस्ट्रेटर हो तो ओनली एडमिन कैन लॉग इन इनटू एनीवन, और इसके लिए एडमिन को किसी की परमिशन की जरूरत, एडमिन को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। With this login access policies, we have this option that we can log in into anyone's account, ठीक है। चलो, अब आता है ट्रैकिंग के ऊपर। अब एक दो चीजें ट्रैकिंग की पढ़ेंगे हम। ये सारा यूजर मैनेजमेंट का पार्ट है, कि जो भी अपन पढ़ रहे हैं ना, दिस ऑल कम्स अंडर दिस यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। चलो, आखिरी एक दो चीजें पढ़ लो, सब काम की चीजें यार। देखो, लॉगिन एक्सेस, सेटअप ऑडिट ट्रेल अभी पूछा गया है, ठीक है। सेटअप ऑडिट ट्रेल क्या है और लॉगिन हिस्ट्री क्या है? तो ये ट्रैकिंग के टूल्स हैं। पहले दोनों दिखा देता हूँ, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताता हूँ। ज्यादा अच्छा ये रहता है लॉगिन हिस्ट्री। सो सेटअप एडमिनिस्ट्रेटर सिक्योरिटी कंट्रोल्स, ठीक है। सिक्योरिटी कंट्रोल्स में आपको ये मिलेगा, व्यू सेटअप ऑडिट। सो लेट्स गो टू हियर, पहले तो लॉगिन देखिए, लॉगिन एडमिन की है। गो टू सिक्योरिटी कंट्रोल्स, सेटअप ऑडिट, लॉगिन एक्सेस पॉलिसीज, गो टू ऑडिट ट्रेल्स, व्यू सेटअप ऑडिट। सी, व्यू सेटअप ऑडिट ऑप्शन ज्यादा इसलिए दिखते नहीं चाहिए। यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर आपको ये सारी ऑप्शंस मिलते हैं। कौन सा यूजर ने कब लॉगिन किया था, ठीक है, कब लॉग आउट हुआ था, और यूजर नेम क्या था। तो ये दीज आर सम बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। कब तक का डाउनलोड कर सकते हो कि लास्ट 6 मंथ्स का, लास्ट 6 मंथ्स का आप डाउनलोड कर सकते हो। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है? यूजर कौन सा था, यूजर का ईमेल आईडी क्या था, कब लॉगिन हुआ था, कब लॉग आउट हुआ था, ओनली दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ओनली दिस इन्फॉर्मेशन कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से यूजर कब लॉगिन हुए, ये सारे यूजर्स हैं। कस्टमर डेवलपमेंट कब लॉगिन हुए थे, कब लॉग आउट हुए थे, लॉग आउट कब हुआ था, ये सब चीजें। दिस इज द ऑडिट ट्रेल, सेटअप ऑडिट ट्रेल। यहाँ पे सिर्फ लॉगिन और लॉग आउट की इन्फॉर्मेशन, और इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन कब तक? लास्ट 6 मंथ्स की रहती है, ठीक है। डाउनलोड होती है एक्सेल शीट में या फिर CSV फाइल,
ये एक चीज है, बट इससे ज्यादा अच्छा ये ट्रैकिंग का मैकेनिज्म है। अगर एडमिन चाहे तो इसको डाउनलोड करके ट्रैक कर सकता है कि किस यूजर ने कब लॉग इन किया है। ठीक है, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इससे भी तगड़ा मैकेनिज्म क्या होता है, वो है आपका लॉग इन हिस्ट्री डाउनलोड। अब ये आपको सिक्योरिटी कंट्रोल में नहीं मिलेगा, लॉग इन हिस्ट्री मैनेज यूजर्स में। तो मैनेज यूजर में ऑप्शन है लॉग इन हिस्ट्री का, मैनेज यूजर को एक्सपैंड करो, लॉग इन हिस्ट्री यहाँ की। अच्छा मैं यूजर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कहाँ से आ गया यार मैडम। सो मैनेज यूजर पे जाओ, लॉग इन हिस्ट्री डाउनलोड यहाँ पे चलो। तो अभी आपसे पूछेगा कि यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, पहले मैं इसको करता हूँ किस में चाहिए, आपको सीएसवी में चाहिए कि आपको एक्सेल शीट में चाहिए, जैसा भी चाहिए आपको, ठीक है। सो लेट्स डाउनलोड दिस। show you that। अब ये मैंने लॉगिन हिस्ट्री डाउनलोड कर लिया, अब इसमें देखो आप कितनी सारी चीजें आ गई। थोड़ा सा फॉर्मेटाइज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, मतलब अच्छे से रीडेबल हो। Let's see। अब देखो, अगर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो ये ट्रैक करना है हमारी लॉगिन पे कोई और एक्सेस है क्या, ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर आता है। सबसे पहले कौन सा यूजर था, ये यूजर था, कहाँ से लॉगिन किया, कब लॉगिन किया, ठीक है, आईपी एड्रेस क्या था, लॉगिन कैसे किया, एप्लीकेशन मतलब लॉगिन डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम, लॉगिन हुआ या नहीं। जैसे एक बार ये लॉगिन फेल हो गया, ठीक है, लॉगिन हुआ या नहीं, ब्राउजर कौन सा था, क्रोम से किया, फायरफॉक्स से किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर से, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, ठीक है, लॉगिन यूआरएल क्या यूज किया है, ठीक है, डायरेक्ट लॉगिन किया या इससे लॉगिन डॉट सेल्सफोर्स से किया, ठीक है। उसके बाद में और भी चीजें देखो, कंट्री कौन सी, कंट्री कोड क्या था, कंट्री क्या था, ठीक है, कंट्री कोड हो गया, कंट्री हो गया। उसके बाद में स्टेट क्या था, सिटी क्या था, पुणे क्यों आ रहा है, एयरटेल यूज कर रहा हूँ, एयरटेल यूज कर रहा हूँ इसलिए पुणे आ रहा है, एयरटेल का आईएसपी वहां का है, ठीक है, ये हो गया। पोस्टल कोड, लैटिट्यूड क्या था, लॉन्गिट्यूड क्या था। अब देखो ये एक जैसा दिख रहा है कोई प्रॉब्लम, एक जैसा दिख रहा है कोई प्रॉब्लम। जहां दिल्ली गाजियाबाद मुंबई दिख गया वहां पे धोखा है, वहां पे धोखा है। इसको जस्टिफाई करके देना, इसको जस्टिफाई करके देना पड़ता है कि ये लॉगिन क्यों, हाउ कम दिस लॉगिन, हाउ कम दिस लॉगिन, ये हाईलाइट हो, और फिर आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि ये क्यों लॉगिन, ठीक है। कि मुझे भी एग्जैक्टली नहीं समझा कि ये लॉगिन क्यों हुआ है, देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये दिस दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ माय इंटरनेट प्रोवाइडर, ये बस मेरा आईएसपी जहां से ले रहा है, वो जहां से आईएसपी ले रहा है वहीं से हो रहा है। बट अगर ये चीजें आती हैं, ये चीजें आती हैं तो दिस बिकम्स एन इशू, है ना, दिस बिकम्स एन इशू, और ये हाईलाइट होता है और इसका जस्टिफिकेशन देना। तो ठीक है, ये अभी तो मेरे पास रीजन है बिकॉज ऑफ माय आईएसपी, मेरा मेरा सर्विस प्रोवाइडर जहाँ का मेरे को दे रहा है वहीं से मैं, लाइक मुझे इंटरनेट आ रहा है तो ये, तो आई कैन जस्टिफाई दिस। आपको मतलब ये मैं बताऊँ, ये फ्रीक्वेंटली मिलेगा, सी ये मतलब नागपुर ऑल्सो, मुंबई पुणे चंडीगढ़ सब दिख रहा है, तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माई आईएसपी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि ट्रैक नहीं होता, सेल्सफोर्स सब ट्रैक कर लेता है, सब कुछ ट्रैक कर लेता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पोस्टल कोड, जहाँ जहाँ से इंटरनेट आपको मिलता गया, जहाँ जहाँ से लॉगिन हुआ, हर चीज ट्रैक होगी, ओके, हर चीज ट्रैक होगी। ऐसा है ये, तो अब सोच लो, अगर अपने को सपोर्ट लेना है तो इस तरह से कभी मत लेना, कभी भी अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर नहीं करना।
ट्रैक हो जाता है। उसका तरीका क्या है वो मैं सिखा दूंगा आपको, सेशन आईडी कैसे शेयर कर, सेशन आईडी शेयर करोगे नहीं पता चलता है। ठीक है, वो भी तरीके हैं, हर चीज के तरीके। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है सपोर्ट देने का। याद रखना इस चीज को। चलिए, आखिरी चीज, रिमोट साइट सेटिंग। रिमोट साइट सेटिंग एक छोटा सा सेटिंग होता है इंटीग्रेशन के वक्त, चलो इंटीग्रेशन भी पढ़ा दूंगा तभी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब हम इंटीग्रेशन पे जाएंगे तब मैं अच्छे से बता दूंगा कि रिमोट साइट सेटिंग क्यों लगता है। तो ये एक्चुअली जब थर्ड पार्टी की कोई भी वेबसाइट को अपन सेल्सफोर्स के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं तब इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये मैं आपको उस वक्त बता दूंगा। वैसे बहुत छोटी सी सेटिंग है ये, कोई बड़ी सेटिंग नहीं है। रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर सिक्योरिटी कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे अगर मान के चलो कि ओपन वेदर मैप, ठीक है, आई वांट दैट दिस वेबसाइट, मुझे इस वेबसाइट के साथ में इंटीग्रेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऐसे एप्लीकेशंस डेवलप कर रहा हूँ वेयर एक्चुअली आई रिक्वायर दिस वेबसाइट टू बी गेट इंटीग्रेटेड। कुछ पैरामीटर्स ये वेबसाइट हमको देगा, कुछ पैरामीटर्स हम सेल्सफोर्स को देंगे। सो इफ आई वांटेड दैट दिस इज एन ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट, सेल्सफोर्स को बताना है कि घबराओ मत, ये एक ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है, एंड आई हैव फ्यू प्रोग्राम दैट आर गोइंग टू इंटीग्रेट विद दिस वेबसाइट, फ्यू पैरामीटर्स आर गोइंग टू बी एक्सचेंज। तो आपको उसे रिमोट साइट सेटिंग में डालना पड़ेगा। कैसे? Go to setup administrator, again security control, remote site settings, see over. So inside the security control, go to remote site setting. ज़्यादा तकलीफ देता है तो यहीं से सिक्योरिटी कंट्रोल डायरेक्ट यहाँ टाइप करो, रिमोट साइट सेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा आपको न्यू रिमोट साइट से नया ऐड करो। कौन सी नेम गिव एनी है, जैसे कि ओपन वेदर मैप देना चाहता हूँ, क्या यूआरएल है, दिस इज द यूआरएल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, दिस इज यूज्ड फॉर इंटीग्रेटिंग द ओपन to HTTHR weather map website with the Salesforce instance. ठीक है, whatever INSTNC Salesforce instance, like this. ठीक है, and just save, that's it, हो गया। स्पेस नहीं मांगता है वो। और save it. तो दिस इज सिंपल सेटिंग, बस कुछ नहीं है। लेकिन इसका एक्चुअल यूज अभी नहीं समझेगा, ये इंटीग्रेशन पे समझेगा। मतलब मैं जब भी कोई अपार्ट फ्रॉम द सेल्सफोर्स अगर किसी भी वेबसाइट को सेल्सफोर्स से जोड़ना चाहता हूँ, आई एम राइटिंग सम सॉर्ट ऑफ एपीआईज, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, आई एम राइटिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्स that programs I'm going to integrate few parameters with this, and I'm actually making some sort of handshaking that we are interchanging some sort of parameters from Salesforce to this, and this website probably is giving something as a response that we are going to collect inside the Salesforce. So ये सब तभी possible है when you add this website as inside the remote site setting. Otherwise not, otherwise not. आप चाहे इंटीग्रेशन की क्लास लिख लो लेकिन वो काम नहीं करेगा। Why? Because inside the admin, you need to write down this inside the Salesforce remote site setting. तो ये होता है जब हम इंटीग्रेशन पे करते हैं कोई भी एक्सटर्नल वेबसाइट को, when I'm going to integrate it, I first need to add it inside the remote site setting. Only in that case we are being able to exchange the parameters, we are able to perform the handshake. That is what. So these are few things related to the user management that we completed it by today. So from tomorrow I'm going to start with the role hierarchy. Now let me first start.